Good afternoon, my dear students. Myself, Dr. Grish Goyal, Assistant Professor, Department of Agronomy, School of Agriculture, IT University, Gwalior. Students, I hope you all are good and stay at home safely. आप सभी लोग घर पर होंगे, अच्छे ही होंगे. So today I am going to start our subject MSc Agronomy of major field crop Kharif season. So let's start our topic about cultivation of millet part 1. Okay. So students, I will introduce all cultivation practices part by part. पार्ट 1 लेके आया हूँ, उसके बाद पार्ट 2 आएगा, पार्ट 3 भी आएगा, पार्ट 4 भी आ सकता है. ओके. सो स्टूडेंट्स, आई विल इंट्रोड्यूस ऑल आउटलाइंस वन बाय वन. ठीक है. दिस इंट्रोडक्शन, वर्कुलर नेम्स, origin, geographical distribution, economic importance, preparation of land, method of sowing and time of sowing, and then reference helping. So students, before starting the topic, I want to telling you about some points. Okay. So per millet, students, the common name of per millet over large part of India is bajra or bajri, which is low price food grain crop. Per millet belong to Poaceae family. It is one of the most important cereal crops of India and rank fourth in area after rice. Wheat and sorghum, which is grow in arid and semi-arid region. Okay. So, students, per millet is the most widely grown types of millets. It has been grown in Africa and the India subcontinent since prehistorical times. The center of diversity and suggest area of uh, domestication for the crop in the Sahel zone of West Africa. Okay. So students, first of all, introduction of per millet. Okay. So bajra of per millet is grow for grain as well as for fodder purpose. Okay. Whereas Napier or elephant grass is mainly cultivated as forage crop. Napier bajra is a hybridization between bajra and elephant grass. This hybrid increases number of tillers, thus yield, quality of forage, also minimize risk of becoming weed in case of Napier. After plantation, it gives yield continuously up to 2 to 3 years. Okay. So this next वर्कुलर नेम्स, किस किस नाम से स्टूडेंट्स इनको जाना जाता है, आइए हम ये आपको बताते हैं. जैसे बाजरा, बाजरा को बंगाली में बोलते हैं, हिंदी में भी बोलते हैं और उड़िया भी बोलते हैं. ठीक है. और बाजरी को मतलब कहाँ क्या बोलते हैं. जैसे बाजरा को यहाँ बोलते हैं, बाजरी को क्या बोलते हैं, जैसे बाजरी को गुजरात में बोलते हैं, मराठी में बोलते हैं. ठीक है. एंड फिर आता है बाजरू. बाजरू हमारा कश्मीरी हो गया, जो कश्मीरी में बोलते हैं, है ना. चंबू हो गया. चंबू मतलब बाजरा ही इसे कहाँ बोला जाता है, मलाया में बोला जाता है, तमिलनाडु में बोला जाता है, तमिल में बोला जाता है. ठीक है. और सजलू में मतलब जो साजालू है, ये तेलुगु में बोला जाता है. ठीक है ना. ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, हर लैंग्वेज में पता होना चाहिए कहाँ पे बाजरे को क्या बोला जाता है, पर मिनट को क्या बोला जाता है. ओके. एंड अदर नेम्स स्पाइक्ड मिलेट पर मिलेट्स, इन नाम से भी जाना जाता है. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा ओरिजिन, उत्पत्ति स्थान. ओके. सो most of the scientists believe that the primary central of origin of per millet in Africa, from where it spread to India. Okay. In study of the variability of a large number of strain of per millet
from Africa and India. The largest range of variability was found in the eastern from Africa. This is future evidence of the African origin of per millets. ओके, सो स्टूडेंट्स मैं आपको हिंदी में भी बता दूं क्या है, बहुत से लोगों की डिमांड होती है सर हिंदी में भी, तो मैं इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों लेके चलता हूं बोथ। ओके, अधिकांश वैज्ञानिक मानते हैं कि जो बाजरा की उत्पत्ति का प्राथमिक केंद्र अफ्रीका है, जहाँ से ये भारत में फैला। ठीक है, अफ्रीका और भारत में बाजरा की बड़ी संख्या में, मतलब इसका उपभेदों में परिवर्तनशीलता के अध्ययन में अफ्रीका से उद्भिदों में परिवर्तनशीलता से अधिक सबसे बड़ी श्रृंखला पाई गई है। कहाँ? भारत में। यह बाजरा अफ्रीका के मूल का और सबूत है। ठीक है, तो ये तो स्टूडेंट्स ओरिजिन था। तो फिर आता है नेक्स्ट हमारा ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, per millet is a crop grown mostly in tropical climate. It is widely grown in Africa and Asia. The important per millet growing countries are India, China, Nigeria, Pakistan, Sudan, Egypt, Arabia and Russia. Okay, in India per millet is grown in almost everywhere except in high rainfall areas like Assam, West Bengal and Odisha, state of Rajasthan, Maharashtra, Gujarat, यूपी, हरियाणा। ठीक है, अकाउंट्स 87% ऑफ टोटल एरियाज। ओके, सो स्टूडेंट्स इसी को मैं हिंदी में आपको बताना चाहूँगा। जो बाजरा है हमारा पर मिलेट ज़्यादातर उष्णकटिबंधीय जलवायु में उगाई जाने वाली फसल है। यह व्यापक रूप से अफ्रीका और एशिया में उगाया जाता है। ठीक है, बाजरा उगाने वाले महत्वपूर्ण देश भारत, चीन, नाइजीरिया, पाकिस्तान, स्वीडन, मिस्र, अरबिया और रूसिया यहाँ पे हैं। ठीक है, भारत में बाजरा असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा जैसे उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों को छोड़कर लगभग हर जगह उगाया जाता है। वहाँ बारिश ज़्यादा होती है तो नहीं हो पाता है। राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी, हरियाणा राज्यों का कुल क्षेत्रफल का 87% हिस्सा है। जो स्टूडेंट्स वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, ठीक है, गुजरात, यूपी, हरियाणा, इनका के 80% एरिया है जिससे जो हम लोग ग्रोइंग करते हैं क्या, बाजरा क्रॉप। ओके, तो फिर आता है नेक्स्ट हमारा है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। ओके, सो बहुत अच्छे से स्टूडेंट्स देखना, बहुत ही अच्छे टॉपिक है इसमें। सो पर मिलेट इज वन ऑफ द मेजर कोरसेस ग्रैन क्रॉप एंड इन इज कंसिडर्ड टू बी ए poor man's food. It is staple food in a short period in the relatively dry tracts of the country. It is the most drought tolerant crop among cereals and millets. Okay, the grain of pear millet is superior in nutritive value of sorghum grain, but inferior in feeding value. Grain contain 12.4% of moisture, 11.6% of protein, and 5% of fat, and 67% of carbohydrates, and 2.7% of minerals. Per millet grain are eaten cooked like rice or chapati. Chapatis are prepared. It is also used as feed for poultry industry and green fodder or dry fodder for कैटर। सो स्टूडेंट्स इसी को मैं हिंदी में बताना चाहूँगा। जो बाजरा मुख्य छोटे अनाज वाली फसलों में से एक है। ठीक है, जो बाजरा है तो छोटे अनाज वाली फसलों में से एक है और इसे गरीब आदमी का भोजन भी माना जाता है। इसे हम जैसे गरीब आदमी का भोजन भी माना जाता है। ये देश की अपेक्षाकृत शुष्क इलाकों में से एक छोटी अवधि में मुख्य भोजन है। ठीक है, ये अनाज और बाजरा के बीच सबसे सूखा सहिष्णु फसल है। मोती बाजरा का दाना शोरगम ददाने के लिए पौष्टिक मूल्य में बेहतर, लेकिन दूध में
पिलाने के लिए, दूध में पिलाने के लिए मूल्यहीन है। अनाज में यानी जो ग्रेन्स में 12%, 12.4% नमी, 11.6% प्रोटीन एंड 5% फैट यानी वसा एंड 67% कार्बोहाइड्रेट और 2.7% खनिज यानी मिनरल्स होते हैं। बाजरा के दानों को चावल की तरह पकाया जाता है। जो बाजरा होता है एक्चुअली जिस तरह हम चावल पकाते हैं इसी तरह हम इसको भी पकाते हैं। ठीक है, तो ठीक है, सो इसी तरह हम इसको भी पकाते हैं। ठीक है, सो और तैयार की जाती है। इसका उपयोग मुर्गी पालन उद्योग और पशुओं के लिए हरे चारे या सूखे चारे के रूप में भी किया जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, ये कितने कितने मतलब कंटेंट होते हैं, कौन कौन से मतलब ग्रेन का कंटेंट है, कौन कौन से न्यूट्रिटिव वैल्यू है, तो डिफरेंट टाइप न्यूट्रिटिव वैल्यू है इसमें। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है हेल्थ बेनिफिट ऑफ बाजरा। ठीक है, हेल्थ के लिए क्या बेनिफिट है बाजरा में, तो आइए हम इनको भी जानने की कोशिश करते हैं। नंबर फर्स्ट, बाजरा प्रमोट्स हेल्थ, हार्ट हेल्थ। ठीक है, हार्ट के लिए भी अच्छा माना जाता है। बाजरा हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। ठीक है, सेकंड है बाजरा हेल्प्स इन रिड्यूसिंग वेट। बाजरा वजन कम करने में मदद करता है। ठीक है, बाजरा में हेल्प इन प्रिवेंटिंग कैंसर। ओके, बाजरा कैंसर को रोकने में मदद कर सकता है। ठीक है, बाजरा हेल्प इन डाइजेशन डिसऑर्डर्स। पाचन संबंधी विकारों में बाजरा मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट है लास्ट, बाजरा कंट्रोल्स ब्लड शुगर लेवल्स एंड हैंस गुड ऑफ फॉर डायबिटीज़। बाजरा रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है और इसलिए मधुमेह के लिए अच्छा माना जाता है। तो स्टूडेंट्स ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है, हेल्थ बेनिफिट ऑफ बाजरा, इसे हम पर मिनट बोलते हैं। सो नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ लैंड या फील्ड। ठीक है, एक ही चीज़ होता है कैसे हम फील्ड को रेडी करेंगे। ओके, पर मिनट कैन बी ग्रो इन डिफरेंट सॉइल, इट डज नॉट ग्रो विल इन सॉइल point to waterlogged conditions. The field should be plowed once of twice followed by horing to create fine till. ओके, अभी एक्चुअली में स्टूडेंट्स फील्ड प्रिपरेशन जो हम लोग है हम लोग को अच्छे से करना होता है। ठीक है, 2 से 3 बार जुताई करना होता है, अच्छे से प्लाइंग करना होता है, अच्छे से उसे हम ठीक है हैरो से अच्छी तरह उसको मतलब करना होता है जो जिससे हमारा फील्ड लेवल अच्छा सा हो। और जब तक फील्ड को अच्छे से रेडी नहीं करेंगे, ठीक है, अच्छे से उसमें मतलब प्लाइंग नहीं करेंगे, हैरोइंग नहीं करेंगे, तो अच्छे से क्या जो सीड हमारा है वो जर्मिनेशन नहीं होगा। तो फील्ड प्रिपरेशन यह मस्ट बहुत अच्छी तरह करना होगा हमको। ठीक है, फिर नेक्स्ट है मेथड ऑफ सोइंग। ओके, सो स्टूडेंट्स 3 सिस्टम ऑफ मिलेट सोइंग आर फॉलोड। नंबर 1 ऑन ए फॉल्ट surface, or second using ridge and furrow system, and third on a broad bead and furrow system. Okay, the seed should be sown at 2.5 cm से 3 cm deep. स्टूडेंट्स ये 3 टाइप की मेथड हैं। ठीक है, कौन कौन से, ऑन ए फॉल्ट सरफेस, सेकंड यूजिंग राइज एंड फॉरो सिस्टम, एंड थर्ड ऑन ए ब्रॉड बेड एंड फॉरो सिस्टम। ओके, द सीड शुड बी शोन एट 2.5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर डीप। स्टूडेंट्स तो मतलब जो बाजरे की गहराई है पर मिनट जो स्विंग करते हैं डीप में गहराई में कितने सेंटीमीटर करते हैं, 2.5 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर की गहराई तक यानी डीप तक। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये टॉपिक आज के लिए इतना ही था, ये पार्ट 1 था। ठीक है ना, तो इसके बाद मैं आपको पार्ट 2 और पार्ट 3 एंड पार्ट 4 भी लेके आऊँगा मे बी। तो आई होप आप इसे पढ़ेंगे अच्छे से।
ठीक है, अगर कोई डाउट लगता है, कोई भी प्रॉब्लम लगती है, आप मेरे से बिल्कुल पूछिएगा। जैसे भी कल मतलब सोलंकी ने पूछा था, ठीक है, नवल ने पूछा था सर ये, तो देखो प्रॉब्लम क्रिएट होती, जब तक पढ़ोगे उससे समझोगे नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक है ना, तो आई होप आप इसे अच्छे से पढ़ें। ठीक है ना, थैंक यू स्टूडेंट्स।